Hello everyone, my name is Torun Chakraborty, a physical education teacher, and you are watching PE Worlds. Once again, I came with another video, and this video is absolutely for ICSC Class 10 Physical Education. As you might be knowing that I am making videos on the descriptive type of questions and answers from the syllabus ICSC Physical Education Class 10. In my previous few videos, I have described the questions and answers from the chapter Human Growth and Development, Body Type, and Physical Education and Physical Fitness. In my last video, I have described the questions and answers, few questions and answers from the chapter Sports Training. Here in this video also, I am going to discuss a few more questions about sports training that will be very helpful for your examination, I believe. Uh, uh, Let me tell you in this regard that I have published one book for you that will be a question answer book that will be very helpful for your board examination. The book is available in Amazon as well as Flipkart. The link of this book is given in the description box. You can check this out. Why I'm saying so, the videos what I'm making here, these questions and answers are from the book what I have published. Okay. So what, as per my understanding, that the questions and answer have been written in such a way that will be very apt for your examination. That's what I believe. ये जो बुक मैं बनाया, वो बुक तुम्हारा जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, ये मेरा विश्वास है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको तुम चेक करके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. इस बुक में जो जो दिया हो मैंने, द थिंग व्हाट आई हैव इंक्लूडेड इन दिस बुक, आई एम लेट्स टेलिंग यू द MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स from all the chapters from the section A, and the descriptive type of questions and answers from the chapter A, section A, means the syllabus human growth and development, body type, physical education, physical fitness, sports training, health education, career in sports, okay, and physical education. And also I have included the questions and answers from the section B also, means the questions and answers from the games portion. I have included basketball, badminton, cricket, and football as well as volleyball in this book. So what I am understanding, the book, what who will be purchasing or who will be reading this book, they will be very beneficial for your examination. Okay. Anyway, let's move forward with the descriptive type of questions and answers of this particular session. Okay, these questions and answers I have already discussed in the previous video from the sports training. As you can see that the MCQ questions and answer also have been depicted in this book. As I have said that the questions and answer what I am describing, that is from the book itself. Okay. Anyway, let's move to the questions and answers from the question number 11. Okay. The question, describe the principle of variance in sports training. स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो एक प्रिंसिपल होता है वेरिएंस, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कैसे. ठीक है. इसमें बोला गया कि द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इज वन ऑफ दोज इमूवेबल टैलेंट्स ऑफ ट्रेनिंग. ओके. इट इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड. द premise that little progressive changes in your regime will give you better gains in performance. The variance of the training should be introduced, otherwise boredom will come. Principle maintains that constant adaptation and changes in intensity, volume, time and workout will prevent the stagnation of the performance gains and or increase performance gains faster than a repetition of the same workout. ठीक है. यहाँ पे जो बोला गया है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो लोड इम्प्लीमेंट करा जाएगा, वो लोड का जो एक्सरसाइज, मतलब लोड मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज बोल रहा है, एक्सरसाइज और ट्रेनिंग बोल रहा है, तो इसको ऐसे तरीके से फॉर्म करना, डिजाइन करना पड़ेगा जो जो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है उसका बोरिंग ना हो जाए. ठीक है. इसमें वेरिएंस चल रहा है. आज कुछ ट्रेनिंग अलग हो रहा है, नेक्स्ट डे कुछ ट्रेनिंग अलग हो रहा है. ऐसे ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बोर्डम नहीं आएगा. उसमें इंटेंसिटी भी ठीक से ढंग से रखना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम भी अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा, टाइम ऑफ वर्कआउट भी अच्छे तरीके से प्लान करना पड़ेगा. ऐसे प्लान करना पड़ेगा क्योंकि
वो जो बंदा आ रहा है उसका बोर्डम नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। Frequency in sports training is very important principle of sports training. Frequency of sports training is how often to train the athletes. Okay, determining the frequency of training program is very important aspect. We know that over after every 3 or 5 times a week is the appropriate number of training session to be carried out for improving performance. Frequency मतलब how quick, मतलब repetition of training. That means that today you did training, next day आप आज एक ट्रेनिंग किए हो, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग कर रहे हो कि नहीं, वो इसका बाद इसका है कि इसमें बोला गया कि जो ट्रेनिंग शुरू होगा और ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऐसे हिसाब से मतलब ये हो सकता है कि आज ट्रेनिंग करो, कल रेस्ट दो, नेक्स्ट डे ट्रेनिंग होगा, और परसों रेस्ट दो और नेक्स्ट डे ट्रेनिंग होगा, ऐसे हो सकता है। और आज ट्रेनिंग हो रहा है, कल हो रहा है, नेक्स्ट डे हो रहा है, नेक्स्ट डे हो रहा है, 5 दिन कंटिन्यूस ट्रेनिंग हो रहा है, उसके बाद 2 दिन रेस्ट मिल रहा है। ऐसा ही सब है, इस सब से ट्रेनिंग को प्लान करना पड़ेगा। ओके, इसके तभी इसका फल मिलेगा, इसका रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके, कंटिन्यूटी ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जो बोला गया कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी मतलब ये एक दिन छोड़ के एक दिन ट्रेनिंग होगा कि हर दिन ट्रेनिंग होगा और 5 दिन ट्रेनिंग होगा और 2 दिन रेस्ट रहेगा, ऐसे फ्रीक्वेंसी हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूटी मतलब जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, उस ट्रेनिंग के स्टार्ट होने के बाद उसमें बहुत सारे गैप नहीं देना है। यहाँ पे बोला गया कि द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स दैट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग शुड बी कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोग्रेस। Continuous and regular training leads to improvement of performance capacity. Interrupted training program leads to a decrease of the performance capacity. मतलब जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा उस ट्रेनिंग का कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें गैप होने के बाद उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगा उसका फुल तरीके मतलब अच्छे तरीके से उस ट्रेनिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू नहीं करने से उसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके, ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। जो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है उसका एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। It is a well-known fact that a player who is passively engaged in training does not develop abilities and always remains totally dependent upon coach. Okay, or the physical education teacher never develops confidence or improves the performance capabilities. यहाँ पे बोल रहा है कि जो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है उस ट्रेनिंग के लिए अच्छा तरीके से, मतलब पैसिव तरीके से नहीं, एक्टिव तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, जो एक ट्रेनिंग के लिए बोला गया कि 5 राउंड दौड़ो, 5 राउंड दौड़ने जब बोला है वो बंदा को, और 3 राउंड दौड़ के बोले नहीं होगा। ऐसे हिसाब से ट्रेनिंग करोगे तो उसका ट्रेनिंग का इफेक्ट नहीं होगा। जो बोला जाएगा वो अच्छा तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, उसको अच्छा तरीके से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, therefore the teacher or coach must ensure that the sports person participate in training with conviction and sincerity. मतलब यहाँ पे बोला गया कि जो बंदा ट्रेनिंग के लिए करने के लिए आएगा उसका अच्छा तरीके से सिंसियरिटी के साथ उसको ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कराना है। जो कोच और टीचर जो ट्रेनिंग करा रहा है, उसको ट्रेनिंग दे रहा है, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। Okay, describe the principle of periodization in sports training. This is very important principle of sports training. Periodization in sports training is an organized and systematic plan of the training year. ये बोला गया कि पीरियडाइजेशन मतलब क्या होता है कि जो ट्रेनिंग ईयर है, ये देखना है कि जो एग्जाम्पल के लिए जनवरी में स्टार्ट किया है और दिसंबर तक ये जो ट्रेनिंग चलेगा, ये जो एक पूरा साल है, पूरा साल को अच्छे तरीके से प्लान करके सिस्टमेटिकली प्लान करना पड़ेगा। अब
नहीं तो उसका ट्रेनिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। इसको कैसे प्लान करना पड़ेगा? दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। इसको 3 फेज में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला फेज होगा प्रिपरेटरी फेज, नेक्स्ट फेज होगा कंपटीशन फेज, नेक्स्ट फेज होगा ट्रांजिशन फेज। ओके, इन दिस प्रिपरेटरी एंड कंपटीशन फेज आर प्लान्ड विथ मैक्रोसाइकिल्स, मेसोसाइकिल्स एंड माइक्रोसाइकिल्स। ये जो प्रिपरेटरी और कंपटीशन फेज है, ये फेज को ये 3 साइकिल में अच्छे तरीके से ढंग से बना डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर इसका रिजल्ट अच्छे तरीके से आ सकता है। फिटनेस इम्प्रूवमेंट, स्पोर्ट्स स्किल डेवलपमेंट, टेक्निक, tactics training are conducted in different microcycles which contribute to mesocycle and that contribute to macrocycles। मतलब ये बोल रहा है कि जो माइक्रोसाइकिल्स है वो माइक्रोसाइकिल्स में जो जो ट्रेनिंग होगा उसका इफेक्ट मैक्रोसाइकिल में आएगा, और मैक्रोसाइकिल का जो ट्रेनिंग होगा उसका इफेक्ट मेसोसाइकिल में आएगा। मेसोसाइकिल का जो इफेक्ट होगा उसका मैक्रो साइकिल में उसका कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक माइक्रोसाइकिल होगा उसके अंदर मेसोसाइकिल और उसके अंदर माइक्रोसाइकिल आएगा। सो ईच एंड एवरी साइकिल इज हैविंग वेरी गुड इम्पैक्ट on macrocycle, because whoever is doing in good in microcycle and mesocycle, and they will be positively their effect will be much more better, means the result will be much more better. Next question, describe the principle of intensity in sports training। intensity मतलब how at what speed the training is being done। It is most important principle of all। intensity means the amount of load that must be invested in a workout session or how hard the exercise is। Means intensity मतलब how much speed it is being implemented, or the how hard it is, that means how difficult it is। there are 3 levels of intensity: low, moderate and high। सो ये चीज़ अब जो ट्रेनिंग होगा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो इसका इंटेंसिटी कौन सी लेवल में रखा जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कैपेबिलिटी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये जो पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस किया है ये प्रिंसिपल के ऑल आर प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। नाउ कमिंग टू द डिफरेंट एरिया, मेंशन द इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। Sports training builds up strength, endurance, improves skill levels, builds motivation, ambition and confidence, improves knowledge of their sport, increases muscle tone, facilitates good circulation, improves agility, flexibility, improves the rate of waste product disposal, speeds up recovery, make more resistant to injury or illness, improve concentration or increases self esteem। मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसका इम्पोर्टेंस जो हम रिपीट किया, जो हम रीड आउट किया इधर, यहाँ पे तुम आप देख सकते हैं कि इम्प्रूव स्किल और स्किल लेवल, मतलब ये बोल रहा है कि आपका स्किल लेवल इम्प्रूव होगा। बिल्ड्स मोटिवेशन, आपको जो मोटिवेशन होगा उसको बिल्ड करेगा। नॉट ओनली मोटिवेशन, एम्बिशन भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। It will be improving your knowledge of the sport whatever you are practicing। जो स्पोर्ट के लिए तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो स्पोर्ट का नॉलेज भी बढ़ जाएगा। इंक्रीजेस मसल टोन, जब ट्रेनिंग करेगा ट्रेनिंग के लिए उसके ऊपर तुम्हारा क्या होगा कि मसल टोन हो जाएगा। फैसिलिटेट्स गुड सर्कुलेशन, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इम्प्रूव्स एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो सब बोला गया है इसको अच्छा तरीके से पढ़ना है क्योंकि तुमको लिखना है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बिल्ड अप स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। मतलब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसे स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बिल्ड कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टू डेवलप द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द एथलीट। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग दैट पर्टिकुलर डेवलप्स दोज टू फैक्टर्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, लाइक स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड थ्रू वेट ट्रेनिंग मेथड and endurance can be developed with continuous training method। ये बोलना जाएगी कि ये दो फिटनेस कंपोनेंट के लिए बात हो रहा है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, दीज आर द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डेवलप
इसका बेसिक तरीका होता है उसका डेवलप करने का, फिटनेस कंपोनेंट डेवलप करना पड़ता है स्पोर्ट्स का अच्छा परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे बोला गया कि ये जो दो कंपोनेंट है इसको अच्छे तरीके से बढ़ाना कैसे हो सकता है। ये बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड होता है। ये जो एक बार बोला गया कि वेट ट्रेनिंग मेथड स्ट्रेंथ के लिए अच्छा होता है और कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड्योरेंस के लिए अच्छा होगा। ये जो ट्रेनिंग मेथड और अच्छा तरीके से और ट्रेनिंग हो सकता है, वो ट्रेनिंग अच्छे तरीके से कराना पड़ेगा क्योंकि आपका स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। हाउ डज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इम्प्रूव स्पोर्ट्स स्किल लेवल्स। स्पोर्ट्स स्किल लेवल कैसे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हिसाब से बढ़ जाएगा। Another vital objective of sports training is to develop the skills or techniques of the particular sport or event in which sports person intend to perform and execute। मतलब यहाँ पे बोला जाएगा कि जो स्पोर्ट्स के लिए आप जो ट्रेनिंग, जो बंदा आ रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, उसका स्किल लेवल, स्पोर्टिंग स्किल लेवल इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि ये जो कोच उसका जो ट्रेनिंग प्लान बनाएगा, इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिंग प्लान बनाएगा, वो जो स्पोर्ट्स के लिए वो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है उसके उस हिसाब से डिजाइन करेगा, क्योंकि उसका स्पोर्ट्स स्किल का इम्प्रूव करना ही इसका मेन मोटो होगा। फिर कोच इंस्ट्रक्टर चेक्स द स्किल लेवल ऑफ द प्लेयर, पहले चेक करता है, उसके बाद वर्क्स ऑन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब स्किल लेवल का जो बेसिक लेवल वो बंदा का हिसाब से है, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा कि उसका कौन सी जगह में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा और कौन सी जगह पे लिटिल इम्प्रूवमेंट करेगा, वो देखना पड़ेगा। वेरियस स्किल इम्प्रूवमेंट ड्रिल्स आर बीइंग प्रैक्टिस। मतलब वो जो स्किल डेवलप करना पड़ता है और उसके स्किल के लिए अलग अलग स्किल इम्प्रूवमेंट ड्रिल होता है, वो ड्रिल इम्प्लीमेंट करा जाएगा so that the players regularly improve their standard of skill and techniques, where the sports person learn the skills and techniques to get mastery over it under conditions specific to their sports and event। मतलब जो स्किल सेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, वो स्किल के जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग के देने के बाद आप वो जो उसके ऊपर मास्टरी हो जाएगा, जो बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है। ये सोचना है कि जो ट्रेनिंग करने के लिए आ रहा है उसको जो प्रिंसिपल पहले बोला गया वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी मास्टरी आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बिल्ड्स मोटिवेशन, एम्बिशन एंड कॉम्पिटेंस, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब जॉब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बंदा पहला स्पोर्ट्स खेलने के लिए आ रहा है, उसको एक मैच में छोड़ देने के बाद क्या होगा कि वो कुछ नहीं खोज नहीं पाएगा, वो उसमें वो सब नया नया लगेगा और परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा। जॉब इसका उसका जो ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग अच्छे तरीके से होने के बाद उसका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, एम्बिशन बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका फिजिकल फिटनेस भी बढ़ जाएगा, उसका स्किल लेवल भी बढ़ जाएगा। वो जो सोचेगा आज कि मेरा स्किल लेवल अच्छा है, मेरा फिटनेस लेवल अच्छा है, कि तो हम परफॉर्म कर पाएगा, ऐसा ऐसा सोच आ जाएगा। Principal sports training plays an important role in motivating sports people. The coaches or the trainers encourage in every phase of training program and motivate the player to improve the better in their skill and fitness। मतलब जब ट्रेनिंग होगा, हर टाइम कोच और जो टीचर जो उसका ट्रेनिंग कर रहा है उसका हर टाइम वो उसको मोटिवेट करेगा कि तुम्हारा ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा, ये इसका फिटनेस लेवल डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा मोटिवेशन देगा। The players are oriented about the recognition and appreciation of the national and international level sports participation and achievements। मतलब बोला गया कि हर टाइम जो कोच और जो ट्रेनर वो उसका ट्रेनिंग करेगा, वो हर टाइम बोलते रहेगा कि तुम जब अच्छा तरीके से परफॉर्म करोगे तो तुम्हारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन भी हो सकता है और अचीवमेंट भी हो सकता है। तो दिस कॉन्स्टेंट इंकरेजमेंट एंड इन्फ्लुएंस फॉर रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन एंड फाइनेंशियल, इवन ये भी हो सकता है कि जब बंदा अच्छे तरीके से खेल पाएगा उसका फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, बहुत स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा, उसका इनकम भी आ जाएगा बहुत सारे। सो ट्रेनिंग्स गेट मोटिवेटेड, बिकम एम्बिशियस एंड गेन कॉन्फिडेंस, अच्छे तरीके से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। They are all well mentally prepared for the competitions, hence the highly trained athlete is always morally boosted, inspired and confident to participate in the competition। मतलब बोल रहा है कि जिसका जो बंदा अच्छा हाईली ट्रेंड, whose training is perfectly fine and जो अच्छे तरीके से ट्रेनिंग किया है, उसका स्किल सेट और जो उसका फिटनेस लेवल अच्छा तरीके से
हाई लेवल में आ जाएगा, उसका ऑलरेडी उसका मोरल बूस्टअप अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इम्प्रूव नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स। ये अच्छा पॉइंट है। हाउ नॉलेज, जब वो बंदा ट्रेनिंग के लिए आएगा, वो जो कोच उसका ट्रेनिंग करेगा, डेफिनेटली उसका स्पोर्ट्स के ऊपर नॉलेज बढ़ जाएगा ना। जो स्किल सीखेगा उस स्किल के लिए वो जो ट्रेनर बोलेगा ये ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तो ऐसा ऐसा रूल है, जब जो ऐसा ऐसा बोलेगा तब तो इसका नॉलेज बढ़ जाएगा। इसमें बोला गया कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हेल्प्स इन एथलीट्स टू गेन थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ द गेम एज वेल एज द रूल्स ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द गेम। जैसे मैंने बोला था, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन उसको बोल देगा जो ऐसे ऐसे रूल्स है, ऐसे ऐसे खेलना है। जब ऐसे बोल देगा तो उसका नॉलेज बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग मेथड्स सुटेबल फॉर डेवलपमेंट, कौन कौन ट्रेनिंग मेथड कौन सा फिटनेस के इम्प्रूवमेंट कर सकता है वो भी बोल देगा, वो भी उसके नॉलेज में आ जाएगा। ट्रेनिंग प्रोसेस एंड पीरियडाइजेशन एनेबल्स देम टू लर्न मोर अबाउट देयर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। जो पीरियडाइजेशन जो ट्रेनिंग जो प्लान होता है उसको हिसाब से जब उसका नॉलेज दिया जाएगा, तो उसका हिसाब से उसका अंदर से वो मोटिवेट इंटरनली मोटिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसा मेरा सोच है, इसका ऐसे ऐसे करना है और ऐसे ऐसे करने से मेरा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंक्रीजेस मसल टोन। ये भी एक अच्छा चीज़ है। इंक्रीजिंग मसल टोन नीड्स द ओवरऑल फिटनेस प्रोग्राम दैट इंक्लूड्स मोर कार्डियोवास्कुलर एंड वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। मतलब जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करने से आपका जो मसल्स है, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, उसका मसल टोन भी हो जाएगा और फिटनेस लेवल भी आ जाएगा। While going through a sports training program, a sports person is required to do weight training exercise or cardiovascular exercise, which ultimately develop the muscle tone and cardiovascular। ये weight training और cardiovascular exercise जब करेगा उसका स्पोर्ट्स पर्सन का मसल टोन आ जाएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फैसिलिटेट्स गुड सर्कुलेशन। इट इज सेइंग दैट ब्लड सर्कुलेशन, जब बंदा ट्रेनिंग करने के लिए आएगा, उसका जब ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होगा, बढ़ जाएगा ना। जो अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा, वो कंटिन्यूअली प्रैक्टिस करने से उसका ब्लड सर्कुलेशन शरीर में अच्छे तरीके से होगा और ऑक्सीजन सप्लीमेंट अच्छे तरीके से होगा। ये देखिए, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट एक्टिव मसल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन and nutrient to fulfill their requirement, more blood must be supplied to the muscle during exercise। ये जो डिमांड होगा कि जब तुम एक्सरसाइज करोगे कि उसमें डिमांड होगा कि तुम्हारा ऑक्सीजन पूरा मसल्स में अच्छे तरीके से जाए। जब डिमांड आएगा उसके हिसाब से बॉडी भी अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन चलाने के लिए ट्राई करेगा। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फंक्शन में आ जाएगा, हार्ट भी अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा। तो ब्लड तुम्हारा जो मसल्स है, मसल्स के हिसाब से अच्छे तरीके से सब प्रोवाइड हो जाएगा। ट्रेनिंग चेंजेस द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट एंड मसल्स फॉर द इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करने से ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। जिसका कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंप्रूव एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेम चीज़ जो बोला गया स्ट्रेंथ और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए, इसमें भी जब ट्रेनिंग करेगा, these abilities are essential prerequisites for sports performance। Agility and flexibility play a vital role in sports and game. Different training methods improve these components. In circuit training method, these are various exercises that aim to develop agility and flexibility. There are a lot of methods are there that develops agility and flexibility. There are ballistic training exercises that can also improve their flexibility. The agility, there are a lot of agility drills are there that can be developed, that can be implemented. Okay, now next question, to sports training improve the rate of waste product disposal। ये भी एक चीज ऐसा होता है, जब जिसका ट्रेनिंग अच्छे तरीके से होगा, उसका वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका वो भी अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो मेन फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड थ्रू द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। मतलब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है हम लोग का बॉडी में, वो भी अच्छा तरीके से काम करेगा
kidney, skin, lungs, rectum are the organs that excrete the waste products, water, salts, carbon dioxide, and from the body. Intense training methods improve the disposal of the waste product. मतलब जब इंटेंस ट्रेनिंग फेज में आएगा उसके उसका बॉडी का जो हार्ट सिस्टम से वो अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। जो अच्छे तरीके से काम करेगा उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी ये जो बोला गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे तरीके से डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है। नाउ हाउ डज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग स्पीड अप रिकवरी टाइम? This is also important. With an increased recovery rate, the body is able to cope up with the demands of the training more effectively and efficiently. तो इसलिए बोला गया कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अच्छे तरीके से करेगा उसका जो रिकवरी फेज भी अच्छे तरीके से होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेक्स द ट्रेनिंग्स मोर रेजिस्टेंट टू इंजुरी एंड इलनेस। ये भी अच्छा एक पॉइंट है। ट्रेंड और एक्सपीरियंस कोचेस आर aware of the common injuries that occur in the game. They train the athletes to draw programs in such a way that the athletes have minimum risk of injury and illness. So ये बोला गया कि जो कोचेस होता है, एक्सपीरियंस कोच है, उन लोगों का पता होता है कि व्हाट आर द कॉमन इंजरीज एंड कहाँ पे इंजरीज हो सकता है। तो इस हिसाब से उसको ऐसे ट्रेनिंग देगा, जो बंदा को ट्रेनिंग देगा उसका इंजरी और इलनेस भी अच्छे तरीके से फ्रीक्वेंटली नहीं आएगा। okay, so next question, maximum sports training improves concentration also. ये भी अच्छा तरीके से होता है। जब ट्रेनिंग में इन्वॉल्व होगा उसका कंसंट्रेशन वो जो ट्रेनिंग कर रहा है ट्रेनिंग में ऊपर इन्वॉल्व हो जाएगा, अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा। इसलिए जब प्रैक्टिस में हर दिन प्रैक्टिस में आएगा उसका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे बोला गया कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग not just aims to development of physical technique or tactical development, it also improves the psychological well-being of the sports person. Means concentration, attention are also improved to a great extent. Okay. So next question, how does sports training increase self-esteem? Self-esteem also मतलब जो self respecting होता है, जो respect होता है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ, एज आई सेड बिफोर, पहले जो बोला गया कि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काम करता है ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। वेल ट्रेन एथलीट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स मे बी फिजिकली, टेक्निकली एंड टैक्टिकली एंड साइकोलॉजी कॉन्फिडेंट एंड हैज हाई सेल्फ एस्टीम, दे डू हैव ए हाई सेल्फ एस्टीम। Okay, this is all about the questions and answers from the chapter sports training. In my previous video I have described some of the questions and answers, and in this video I have described the rest of the questions and answer in this chapter sports training. That's what I'm telling you once again, that please check out the book. What I have the link of this book is given in the description box, so that you can read this book in hand. The hard copy will be very, very helpful for you to read the answers the way I have written. So that's what I'm repeatedly telling you. Just you can check this book out from the Amazon or Flipkart. The link of this book is given in the description box. And if you are new to our channel, please subscribe it so that you can get more information about physical education and sports, and you will be getting more further videos what I'll be making. And if you are already there in our channel, so please continue following us, so that you can get updated of all the videos what I'm making further. Okay, thank you so much.